Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English grammar educator. Today I will explain you the 19th chapter of class 5th. This chapter name is preposition. What are preposition? Let's learn about it. Before starting the chapter, we have this warm-up activity. Study the given picture and take turn to टॉक अबाउट देम इन क्लास. इन पिक्चर्स को आपको अच्छे से स्टडी करना है, देखना है और आपको इसके बारे में क्लास में बात करनी है. यूज एटलीस्ट वन वर्ड फ्रॉम द टेबल इन ईच ऑफ योर सेंटेंस. आपको सेंटेंस बनाने हैं और आपको इनको वर्ड्स को ईच वर्ड को यूज करना है. जैसे द कैट इज अंडर द table, the cat is behind the table, the cat is in front of the table, the cat is on the table. इस टाइप से आपको सेंटेंस बनाने हैं. Word that show the relation between a noun or a pronoun and some other word in sentence is called a preposition. Word जो बताते हैं relation किस किस के बीच में, एक noun के बीच में या pronoun के बीच में या फिर some other words in a sentence, कुछ other word sentence में, उनको हम preposition कहते हैं. जैसे I found the पेन ऑन द टेबल. मुझे टेबल पर एक पेन मिला. दिव्या वेंट टू द जू. दिव्या जू जा रही है. इन सेंटेंस वन द वर्ड ऑन शो द रिलेशनशिप बिटवीन पेन एंड द टेबल. वर्ड ऑन बताता है किस किस के बीच में रिलेशन, पेन और टेबल के बीच में. सो इट इज एन प्रीपोजिशन. तो ये प्रीपोजिशन है. इन सेंटेंस टू द वर्ड टू शोज द रिलेशनशिप बिटवीन दिव्या एंड जू. टू बता रहा है दिव्या और जू के बीच में रिलेशनशिप. तो सो इट इज ऑल्सो अ प्रीपोजिशन. Now come to the question. Circle the preposition in the following sentences. हम इन sentences में सर्कल करना है prepositions को. I am not going with you. तो इसमें with क्या है? Preposition. He is in Kolkata. In preposition है. See my sitting between Rahul and Madhu. Between preposition है. She left before I reach. Before preposition है. They are watching television in their bedroom. In क्या है? Preposition है. नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के कितने काइंड्स होते हैं? सम प्रीपोजिशन आर यूज्ड टू शो द प्लेस और वेयर समथिंग हैपेंड. कुछ प्रीपोजिशन बताती है कि किस प्लेस पर और कहां पर कुछ हो रहा है. जैसे ही इज हाइडिंग अंडर द बेड. वो बेड के नीचे छुपा है. कीप द कुशन ऑन द सोफा. कुशंस को सोफा पर रख दो. There is no air conditioner in this shop. यहाँ इस शॉप में कोई एयर कंडीशनर नहीं है. I have parked the car behind the house. मैंने अपनी कार को हाउस के पीछे पार्क करा है. Some preposition are used to show time or when something happens. कुछ preposition बताती हैं किसी चीज का टाइम और कब वो हुआ. जैसे I go to music class at 6 PM. मैं म्यूजिक क्लास गया 6 बजे. We will watch a movie on Sunday. हम संडे को मूवी देखेंगे. I went to the summer camp during my holidays. मैं समर कैंप में जाऊंगा अपने हॉलीडेज में. My birthday is on 5th February. मेरा बर्थडे 5th February को है. Some preposition are used for special और other purpose. कुछ preposition यूज होती है किसी स्पेशल के लिए, अदर पर्पस के लिए. जैसे she travels by bus every day. I will not go to the party without her. मैं उसके बिना पार्टी में नहीं जाऊंगा. We will have biryani for dinner. हम डिनर में बिरयानी खाएंगे. Now tips to remember is preposition show whether words are connected through time, space or place. preposition बताती है words को connect करती है किसके थ्रू? टाइम, स्पेस या प्लेस के थ्रू. अदर प्रीपोजिशन दैट आर यूज्ड टू शो प्लेसेस आर. कुछ अदर प्रीपोजिशन है जो प्लेस के लिए यूज की जाती है. जैसे डाउन, अंडर, अपॉन, ऑन, इनसाइड, आउटसाइड. अदर प्रीपोजिशंस दैट आर यूज्ड टू शो पोजीशंस आर. कुछ ऐसी प्रीपोजिशन जो पोजीशन बताती है वो है बिटवीन, अमंग, बिसाइड्स, अपोजिट, अगेंस्ट. अदर प्रीपोजिशन दैट आर यूज्ड टू शो डायरेक्शंस आर. कुछ ऐसी प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन को शो करती है जैसे आफ्टर, अप, अक्रॉस, ओवर, थ्रू. Now come to the question. Fill in the blanks with the correct preposition. Take help from the box. I am reading a story by Ruskin Bond. The boat went under the bridge. The children were seeing through the window. The monkey climbed to the top of tree. That there is no salt in the food. तो इस टाइप से हमने preposition का यूज किया. Now the next question is rewrite the sentence by using the correct preposition. इन sentences को हमें फिर से देखना है दोबारा से correct preposition यूज करके. I will play
मैं खेलूंगा, नियर आई कंप्लीट माई वर्क नहीं, व्हेन आई कंप्लीट माई वर्क, मैं खेलूंगा जब मैं अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। The father punished his son on a stick. The father punished his son with a stick. यहां पर with आएगा on की जगह. Now the next is it is 9 into my watch. It is 9 in my watch. She bought a dress from 2000 rupees. She bought a dress of 2000 rupees. I have known him through known him through 2001. No, since 2001. तो ये क्या किया हमने, करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज किया. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं हमें एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को यूज करके. द ट्रेन इज रनिंग इन फुल स्पीड. हैज द बस अराइव्ड टू स्कूल. ही इज सफरिंग फ्रॉम an infection. Suman is studying in her room. What is the time in your watch? Next is speaking skills. टेल द लोकेशन ऑफ योर हाउस टू योर फ्रेंड. आपने आपको बतानी है अपने हाउस की लोकेशन अपने फ्रेंड्स को. रिमेंबर टू यूज प्रीपोजिशंस व्हिच आर यूज्ड टू शो प्लेस. आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है जो प्लेस को शो करती है. जैसे माय हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, माय हाउस इज नियर द टेंपल, माय हाउस इज बिटवीन अ पार्क एंड अ मार्केट. इस टाइप से आपने आपको हाउस का एड्रेस बताना है. नाउ वैल्यू लिंक इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर थिंग्स टू बी इन ऑर्डर. ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि चीजें ऑर्डर में हो. इन देयर प्लेस, उनके प्लेस पर. जैसे माई हाउस इज बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, माई हाउस इज नियर द टेंपल, माई हाउस इज बिटवीन अ पार्क एंड अ मार्केट. तो इस चैप्टर में हमने सीखा प्रीपोजिशंस के बारे में. थैंक यू स्टूडेंट्स.